Okay, so the set is diamond necklace. Rasiklar is a jeweler who specializes in designing diamond pendants. Diamonds that are used by Rasiklar are of different types A, B, C, D, E, F, and G, which are weighed in carats. And the table given below shows the value of the diamonds that the jeweler uses in his design. His latest wedding collection of signature pendants have diamonds set in concentric circles. Further, it is also known that at the center of the pendant is placed a single diamond of type A, which is followed by concentric circles having diamonds of type B, followed by C, and so on. Starting from the center, the number of diamonds in each concentric circle is equal to more than the double of the number of diamonds in the previous circle. It is equal to more than the double the number. ठीक है, डबल से ज्यादा होना चाहिए. Is more than or equal to. या तो इक्वल भी हो सकता है या डबल से ज्यादा कुछ लेना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल हमने बी के 5 ले लिए हैं डायमंड, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी देन इज 10. ये 10 से ज्यादा भी आप कुछ ले सकते हैं. एंड थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में वेरी अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, बट ई सिग्नेचर पेंडेंट इन हिज वेडिंग कलेक्शन always has a total of 130 diamond. So total 130 diamonds होने चाहिए, चाहे concentric circles आप कितने भी, right? So I think ये questions है, what is the difference between the maximum and minimum number of type C diamond used in pendant with the concentric circles? If the pendant had 5 types of diamond, then which of the following statement can be true? ये तीन statement दे रखे हैं. What is the difference between the maximum and minimum value of pendant designed with the above specification? And the last one, which of the following is not possible for signature pendant of Rasiklar? So again, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करें, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप कंटिन्यू इसको करें. Okay, so let us move to the first question. What is the difference between the maximum and minimum number of type C diamond used in the pendant? ठीक है, कोशिश करते हैं. So minimum and maximum. So we are now focusing on type C, A, B or C. A तो एक लेना ही लेना पड़ेगा, वो फिक्स है. Now minimum or maximum. Now let us try to maximize the C. In total we must have 130 diamonds. B को 2 ही रहने देते हैं, C को remaining 127 ले लेते हैं. Why not? हमें टोटल 130 करना था. कंडीशन है बाहर वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो भी आपके आ रहे हैं उसमें it should contain either double or more than that. So yes, the condition is satisfied. B is having double of A, C is having more than the double of B. तो चलेगा ना. And if we try to minimize this value, यदि हम इसको minimize करें, so A is 1 for sure, ये तो फिक्स है. अच्छा, इसको मिनिमाइज करना है तो इन दोनों का जो है टोटल वो 129 होना चाहिए. 129 मैक्सिमम होना चाहिए. सो इफ आई अज्यूम इट टू बी x और इसको डबल ऑफ x भी लेते हैं, ज्यादा क्यों ले, ज्यादा तो क्यों ही ले, बिकॉज वी नीड टू मिनिमाइज दिस वैल्यू ना. सो दिस 3x मस्ट बी इक्वल टू 129. From here x comes out to be 43. So if we take 43 diamonds of type B and 86 of C, तो दिस द मिनिमम वैल्यू फॉर सी. हम सी को इससे ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज जो टोटल है 130 वो हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 127 एंड 86? द डिफरेंस इज ऑफ 41. सो द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन इज 41. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. If a pendant has 5 types of diamonds, then which of the following statement can be true? So we have 5 types of diamond, so we have to start with A, B, C, D and E. There are 18 type C diamonds. 18 यदि हम type C लेते हैं, so this is 1, right, for sure. This has to be minimum 36. This has to be minimum 72, right, as per the condition. So ये कितना हो रहा है बच्चों? This 72 and 36 is 108. 108 and 18 is 126 और 1 यहाँ पर है, that is 127. Now if we assume the type B diamonds to be 3, तो ठीक है, ये 130 हो जाएगा. तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो फर्स्ट हो सकता है. The value of type B diamond is 22.5 lakh. Now value is 22.5 lakh and each diamond of B costs 2.5 lakh rupees. So that means we are having 11 diamonds of type B. यदि हम 11 type B के ले रहे हैं, A is 1 only, that is given to us in the question. So C minimum has to be 22, D minimum 44 and this has to be 88. Now this number is definitely exceeding 130, right? So this case is not possible. ये नहीं हो सकता है. And third, the number of type C diamond is 5 times the number of type B diamonds.
टाइप सी टाइप बी के 5 टाइम्स हो जाए। सो सी इफ वी टेक दिस टू बी 1, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज है बच्चों इसको 20 ले लेते हैं। चलो, तो अभी कितना हो चुका है हमारा, 33 हो चुका है। तो वी नीड टू हैव रिमेनिंग 97 डायमंड। तो ठीक है ना, 97 ई के ले लेंगे, क्या दिक्कत है। कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ई द वैल्यू ऑफ ई इज मोर देन दैट ऑफ डी, वो हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, वो हो रहा है ना। तो ये हो सकता है, दिस क्वाइट पॉसिबल, ये भी हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3, these two statement can be true, ये दोनों हो सकते हैं। Moving to next question, what is the difference between the maximum and minimum value of a pendant designed with the above specification? So minimum and maximum value, so देखिए if you notice it, सारी जो values हैं price की वो decrease हो रही हैं। So to maximize the value, we'll try to maximize these diamonds type A, type B और type C ना, इनको maximize करते हैं, बहुत expensive है। And when we try to minimize the value, so let us try to maximize the cheap diamonds, basically type G, type F, type E and so on. तो maximum के लिए can we have one for A is mandatory. So can we have remaining 129 pendants of type B only? कैसा कर सकते हैं, उससे क्या होगा। सो 129 इंटू 2.5, ये अपना इसका कॉस्ट आ जाएगा, एंड इंटू 4 ये इसका कॉस्ट आ जाएगा। सो ये कितना होता है, सो दिस इज बेसिकली 130 इंटू 2.5 यदि हम करते हैं, तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 5, दिस इज 10 4 1, so this is 6, and then we have 258, so this comes out to be 322.5 and 4 is 326.5 and this is in lakh rupees। ये हमारी मैक्सिमम कॉस्ट आ पा रही है, ठीक है। Now let us try to find out the minimum cost, मिनिमम कितना हो सकता है। So for having the minimum cost, हमें आगे वाले पेंडेंट्स, आगे वाले डायमंड्स ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। So let us have 1 of A type, 2 of B type, 4, मिनिमम से मिनिमम सी को 4 देना पड़ेगा, डी को 8 देना पड़ेगा, ई को 16 देना पड़ेगा, एफ को 32 देना पड़ेगा एंड जी को 64। दीज आर द मिनिमम वैल्यू। पर इसमें गड़बड़ है, आप जब इसको टोटल करेंगे सो यू विल गेट 127 डायमंड्स ओनली। कैसे पता किया कि जो 2 की पावर से सारी इनका जो समीशन आता है, तो आप जब चेक करेंगे ये 127 आ रहा होगा, हमें तो 130 करना था। अब हमें 3 डायमंड्स और इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो तीनों हम टाइप जी के इंक्रीज करते हैं, इसको 67 ले लेते हैं। इसको 67 लेने से क्या होगा बच्चों, अब जो डायमंड्स हमारे आ रहे हैं उसमें 130 भी कंप्लीट हो गए हैं, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और हमने चीप क्वालिटी के डायमंड्स यूज किए हैं, तो जो प्राइस रहने वाला है वो मिनिमम रहने वाला है, राइट। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द कॉस्ट। तो दिस इज 4 लाख रुपीज, सो 4 लाख का ये हो गया है, इंटू 2.5 करेंगे तो दिस मेक्स इट 5, इट इज इंटू 1.5, तो ये हो गया है अपना 6 लाख रुपीज का 8, and this is type D diamond costing rupees 1.25, so that makes it 10, 16 into 1 is 16, 32 into 0.75 is 24, and 67 into 0.5 is 33.5। सो दिस इज द मिनिमम कॉस्ट जो हमारे डायमंड की हो सकती है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट इट टू बी, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4 and 5 9, this 15 25, 25 and 24 is 49, and 16 65 and 33.5, so 60, how much it was 60, एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ, this is 9 and 15 25 25 and 16 is 41, 65 65 and 33.5, तो 98.5 अपना हो रहा है। तो दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, ये मिनिमम पॉसिबल है, ये मैक्सिमम पॉसिबल है। अब हमें इनका डिफरेंस बताना था, अब डिफरेंस देखेंगे सो इट मस्ट बी अराउंड 228, क्योंकि 26 से 98 गया, तो यस 228 लाख रुपीज। सो 228 lakh rupees makes it 2.28 crore rupees. Option D is the correct one. And moving to last question, which of the following is not possible for a signature pendant of Rasiklar? There are exactly 43 diamonds of type B. चलिए कोशिश करते हैं। So 43 डायमंड बी के हो जाते हैं, तो ये मिनिमम 86 होगा, तो ये कितना हो गया टोटल, 86 and 43 is 129 and 1 is 130. Now this is possible, 130 तो करना था।
हमें बताना है विच ऑफ देम इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट वन इज पॉसिबल। There are exactly 75 diamonds of type E. 75 diamonds of type E करने, ठीक है, लिख देते हैं। So this is 75। यहां पर 75 आएगा यदि हम मिनिमम वैल्यूज भी दे। दिस इज 1 2 4 8, ये 75। यहां पर यदि 75 हो जाता है तो हमें इन वैल्यूज को इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सो इंस्टेड ऑफ 8, यहां पर हम we can have any value in the range 8 to 70, कितना 37। 37 तो कुछ भी हो सकता है। 37 का डबल इज 75 ना, 74। हमको यहां पर जो भी वैल्यू है ये वैल्यूज के डबल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, राइट? तो यहां पर मैक्सिमम वी कैन हैव 37। नाउ हाउ मच इज 37 एंड 75? सो दिस इज 112। अभी हमें कितना और करना है? 18 और करना है। 18 में से 1 तो यहां पर फिक्स है फॉर ए। सो अब हमें कितना और करना है? 17 और करना है। क्या हम इन दो वैल्यूज को यूज करके 17 कर सकते हैं? क्या यदि मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो यहाँ पे 15 लिख सकता हूँ? क्या 17 हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अगेन चेक फॉर द कंडीशन। 1 इसका डबल है चलेगा, डबल से ज्यादा है चलेगा, डबल से ज्यादा है चलेगा, डबल से ज्यादा है चलेगा। सो हमने कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं की है। नाउ दिस अगेन इज क्वाइट पॉसिबल, ये भी हो सकता है। 60 ऑफ टाइप डी, टाइप डी के यदि हम 60 ले लेते हैं, सो वी कैन नॉट हैव ई देन, बिकॉज वहां पे 120 लेना पड़ेगा, दैट विल एक्सीड, राइट? यहां पर 60 लिया तो यहां पर मैक्सिमम 30 हो सकता है, यहां पर मैक्सिमम 15 हो सकता है, एंड दिस इज वन ओनली। सो आप देखेंगे ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। वी कैन नॉट हैव 130 डायमंड्स नाउ, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द आंसर, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, और हमें यही पूछा गया था विच इज नॉट पॉसिबल। सो ओवरऑल ये क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी का था। मैक्सिमम 10 मिनट्स में ये पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए।